Assalamu alaikum. Today we are going to learn a poem of 10th standard. The name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. The number of this poem in your textbook is 3.3 and the poet of this poem is Robert Frost. In this poem, the poet describes an incident in a snowy evening. A traveler is traveling on a horse. He comes near a woods and he describes that incident, what he thinks and what he wanted to do. These things are described by the speaker in this poem. This poem has 4 stanzas. I'll read the poem. Look into your books. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it care to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So these are the 4 stanzas. Let us now find out the rhyming words from these stanzas. From the first stanza actually. The rhyming, you should find the rhyming words and at the end of the lines. The last word of the first line is no and the last word of the second line is do. Do you find the sounds of these 2 words similar? No, do. Yes, the sounds are similar. That's why they are rhyming pairs. Rhyming pair. And the third word is, the last word of the third line is here. No, do, here. Here is not matching. The sound of the here is not matching with any other word. That is why this is not the rhyming word. And the last word of the fourth line is snow. The sound of the snow matches with the sound of no and do. That's why snow is the rhyming pair of no and do. So no, do and snow are the rhyming words of the first stanza. Now let us find the rhyme scheme of this stanza. Rhyme scheme कैसे निकालते हैं? By giving the number or name to each word of each line or the last word of each line. तो उसी तरह से फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नो, उसको नेम देंगे हम ए बी सी डी के नंबर देंगे, नेम देंगे, कोई अलग नहीं. तो नो को हमने नाम दिया ए. अब इसी तरह से ए बी सी डी नेम्स देंगे. लेकिन जब कभी भी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स आएंगे तो उनको सेम नेम देंगे. नो का हो गया ए. दो का अगर आप देख रहे हैं तो नो और दो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए नो को जो हमने ए नाम दिया, दो को भी वही नाम आएगा ए. ये हो गया नो को भी ए और दो को भी ए. नेक्स्ट है हियर. जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले देखा है, हियर ये राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए उसको हम देंगे नेक्स्ट नेम, दैट इज बी. तो क्या हो गया राइम स्कीम? ए बी. अब जो लास्ट फोर्थ लाइन का वर्ड है वो है स्नो. स्नो ये नो और दो का राइमिंग वर्ड है, इसलिए उसको भी वही नाम देंगे ए. तो राइम स्कीम इस स्टांजा की क्या बनती है? ए बी ए. ये हो गई राइम स्कीम. नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम. देखिए आप पोएम में, whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. The speaker is traveling on the horse. He comes across a woods. woods के पास, जंगल के पास, किसी खेत के पास, दरख्तों के पास वो आता है और रुकता है और कहता है I know whose woods these are. ये किसका जंगल है, ये किसका खेत है? I know. किसका है? His house is in the village though.
He does not live here. इसका जो मालिक है, he does not live here in the woods, but he lives in the village. वो विलेज में रहता है, वो यहाँ पर नहीं रहता, इसलिए he will not see me stopping here. अब ये स्पीकर का दिल चाह रहा है कि वो यहाँ पे रुके. क्यों? वो जो स्नोई इवनिंग है, वो उसका मौसम है, उसको देखते हुए उस वेदर कंडीशंस को उसका दिल चाह रहा है कि वो वहां पे रुके और उसको एंजॉय करे. लेकिन वो कहता है कि ओनर ऑफ दिस वुड्स विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. वो मुझे नहीं देखेगा मैं यहाँ पे रुका हूं. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. आई विल सी दिस. मैं ये देखूंगा. क्या देखूंगा? His woods fill up with snow. Actually snowy evening है, मतलब क्या? Snow is falling और ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो his woods will fill up with snow. उसके वुड्स में हर जगह, उसके जंगल में, उसके खेत में हर जगह स्नो आ जाएगा, स्नो से भर जाएगा वो. तो वो मैं देखूंगा. द ओनर विल नॉट सी इट. वो नहीं देखेगा. व्हाई? बिकॉज ही लिव्स इन द विलेज एंड ही इज नॉट प्रेजेंट हियर. आई एम प्रेजेंट हियर. मैं ये सब देखूंगा. ये देखने का दिल चाह रहा है इस खूबसूरत मौसम को. वो रुकना चाहता है यहाँ पर और एंजॉय करना चाहता है इस मौसम को. लेकिन तभी माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट कियर. ऐसे लगा होगा मेरे लिटिल हॉर्स को. मस्ट थिंक इट कियर. कियर जैसा कि आप देख सकते हैं मार्जिन स्पेस में भी मीनिंग दिए हुए हैं. कियर मीन्स स्ट्रेंज. मेरे लिटिल हॉर्स को ऐसे लगा होगा मेरा ये रुकना कैसा? स्ट्रेंज, अजीब लगा होगा. क्यों अजीब लगा होगा? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. ऐसे मौसम में व्हेन द स्नो इज फॉलिंग एंड देयर इज कोल्ड, सर्दी है, स्नोफॉल हो रही है, ऐसे मौसम में टू स्टॉप हियर विदाउट अ फार्म हाउस नियर. कोई फार्म हाउस, कोई रुकने की जगह यहाँ पे नजदीक नहीं है सर छुपाने की. ऐसी जगह पर मैं रुक रहा हूं तो मेरे हॉर्स को लगा होगा क्या? किया. स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा होगा. और वो भी जगह कैसी और टाइम कैसा है वो भी आगे बता रहा है. ऐसी जगह पे रुक रहे हैं बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक. ये एक तरफ तो वुड्स है, जंगल है, खेत है जिसमें हर तरफ अभी स्नोफॉल हो रहा है और ये पूरा स्नोफॉल से भर जाएगा. और एट द अदर साइड देयर इज लेक. लेक है और वो भी लेक कैसी है? फ्रोजन. ऑल द वाटर ऑफ द लेक इज फ्रोजन, फ्रीज हो चुका है, पूरा पानी फ्रीज हो चुका है. इतनी सर्दी है. ऐसी जगह पे रुक रहा हूं मैं. और टाइम भी कैसा है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. अब डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कब होती है? जब रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है. लेकिन ज्योग्राफिकली नहीं कहना है उसको कहना है देयर इज डार्कनेस ऑल ओवर. हर जगह अंधेरा है ऐसी टाइम पे और ऐसी जगह पे मैं रुक रहा हूं ऐसे मौसम में. तो लगा होगा मेरे हॉर्स को. माई हॉर्स मस्ट थिंक इट कियर. उसको अजीब स्ट्रेंज लगा होगा. क्यों ऐसे कह रहा है पोएट स्पीकर? क्योंकि वो आगे कहता है he gives his harness bells a shake. अपने हार्नेस बेल्स को उसने शेक दिया. व्हाट इज हार्नेस बेल्स? आप तस्वीर में, फोटो में देख लीजिए, इमेज में. These are harness bells. तो हॉर्स ने क्या किया? He gave them a shake. हिलाया. क्यों हिलाया? To ask if there is some mistake. The horse wanted to ask his master. पूछना चाहता था क्या? Why did you stop here at such a strange place on such a strange time? क्यों रुक रहे हो? Is there any mistake? कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? The horse wanted to ask his master. तो ये हार्नेस बेल्स की उसने आवाज सुनी और आगे कह रहा है the only other sound is the sweep of easy winds. Of easy wind. एक हार्नेस बेल की साउंड और जो सिर्फ दूसरी आवाज आ रही है वो ये है द स्वीप ऑफ इजी विंड. विंड के यानी हवा के बहने की आवाजें एंड डाउनी फ्लेक. व्हाट डू यू मीन बाय डाउनी फ्लेक? मार्जिन स्पेस में दिया हुआ है. बेल्स tied in the soft feather like snowflakes falling means snowfall. snowfall की जो आवाज है बर्फबारी की वो आ रही है. पाउडर लाइक स्नो उसको कहते हैं स्नोफॉल. उसकी आवाज, हवाओं की आवाज और हार्नेस बेल्स की आवाज. सिर्फ इतनी आवाज है. बाकी हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है. हर जगह अंधेरा है.
बट द पोएट वांटेड टू एंजॉय दिस, वो एंजॉय करना चाहता है ऐसे मौसम को, ऐसी चीज को, क्योंकि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स ऐसे हैं लवली, डार्क अंधेरा है हर जगह, सन्नाटा है, खामोशी है, एंड डीप गहरे हैं, जंगल गहरा है, हर जगह दरख्त हैं, ऐसे मौसम को एंजॉय करना चाहता है, रुकना चाहता है। इस पोएम के दो मीनिंग्स हैं, एक इसके लफ्जी मीनिंग जो वर्ड्स के मीनिंग सामने आ रहे हैं वो, और एक है एक्चुअल मीनिंग, मुरादी माने हैं उसके, वो क्या हो गया मैं पोएम के बाद बताऊंगा आपको। तो वो रुकना चाहता है यहाँ पे, लेकिन खुद ही आगे कहता है बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस किए मैंने लोगों से, मैंने वादे किए हैं, उन वादों को मुझे पूरा करना है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे वादे पूरे करने के लिए, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे मीलों सफर करना है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रिपीट कर रहा है। तो देखिए ये हो गई पोयम। अब मैं इसके आपको बताऊंगा सेकेंड मीनिंग। सेकेंड मीनिंग बताने से पहले मैं आपको इस पोयम में जो यूज हुए हैं वो जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच? पिछली पोएम में हमने देखा था टीनेजर्स प्रेयर में, okay? जब कभी भी पोएट अपने पोएम को इफेक्टिव बनाना चाहता है तो अलग अलग तरीके अपनाता है, उन तरीकों को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, और हर तरीके को अपना एक नाम दिया हुआ है। तो आप देखिए मैं जो लाइन कह रहा हूं आपको वो देखिए, Whose woods these are, I think I know. इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। कौन सी? फर्स्ट लाइन है पोएम, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एंड दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहते हैं उसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। जब कभी किसी लाइन में सेम साउंड से शुरू होने वाले वर्ड आते हैं एक ही लाइन में तो दैट इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन। तो इस लाइन में कौन से सेम साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स आए हुए हैं? Whose woods, whose W यानी वो साउंड, वुड्स में भी वो साउंड W से, तो ये है एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन जो आपको देखनी है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन। इसमें पहचानिए आप कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, और वो है लाइन कौन सी है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, इसमें भी एलिट्रेशन यूज हुई है। डार्क डीप द साउंड से शुरू हो रहा है। उसी तरह से इससे पहले जो लाइन हमने देखी पोएम की फर्स्ट लाइन, whose woods these are I think I know, इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, वो कौन सी? देखिए इसमें वर्ड ऑर्डर को चेंज किया गया है। इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर किस तरह से होता है किसी सेंटेंस का? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा तो वो होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह के वर्ड ऑर्डर को अगर चेंज किया जाता है तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो इसमें किया गया है। I think I know ये पहले आना चाहिए, इसके बाद आएगा whose woods these are, लेकिन उसको उल्टा किया हुआ, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो दो हो गए। नेक्स्ट देखिए आप, My little horse must think it clear, My little horse must think it clear, सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एनिमल्स में ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दी है। ये थिंकिंग करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ह्यूमन की है, ये एनिमल में हॉर्स में दिखाई गई है, इसलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। उसी तरह से लास्ट के दो लाइंस पोएम के, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, 2 टाइम्स आया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, रिपीटिशन। ये हो गए फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में यूज हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस पोएम के सेकेंड मीनिंग। जो पोएट की जर्नी है, सफर है, एक्चुअली इसके जरिए से पोएट वांटेड टू शो हिज लाइफ, अपने लाइफ को उसने जर्नी से कंपेयर किया है। जो सफर कर रहा है वो उसकी लाइफ है एक्चुअल में, और उसी तरह से ये स्नोई इवनिंग में सफर कर रहा है, तो लाइफ की स्नोई इवनिंग चल रही है, मींस लाइफ का उसका ओल्ड एज चल रहा है, और इस ओल्ड एज में लवली डीप डार्क वुड्स नजर आ रहे हैं उसको। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप है,
लवली डार्क एंड डीप वुड्स में क्या होता है? पीस मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसको क्या कहते हैं? एवरलास्टिंग पीस मिलता है। ये लाइफ के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है ओल्ड एज की जो शांति, सुकून, पीस है, उससे कंपेयर किया हुआ ओल्ड एज। उसी तरह से आगे कह रहा है लास्ट स्टैंजा में, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे वादे पूरे करने हैं, मतलब अपनी लाइफ की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। तो क्या करें? अपनी लाइफ है, एक सफर है, उस लाइफ में वो अपने ओल्ड एज को पहुंच चुका है, सुकून शांति है, बट he has to fulfill his duties and responsibilities, वो उसको पूरे करने हैं। and miles to go before I sleep, सो जाना, सफर के एंड में सो जाते हैं, तो लाइफ के एंड में क्या होता है? डेथ। miles to go before I sleep मतलब डेथ से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये है इस पोएम के सेकेंड मीनिंग। ये राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स देखें। उसी तरह से पोएम के सेकंड मीनिंग देखें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आए, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पोएम के मार्जिन स्पेस के क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सेकंड वीडियो जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गुड बाय।